A2AS की अलग थी, और आपकी जो इसका नाम है क्या, ये जो पास पेपर्स की हैं वो अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा मजहर अदन। अदन आप छुट्टियां मार रहे हो थोड़ी सी, क्या हो गया? यू वाचिंग वीडियोस, ओके, ऑलराइट, but don't try and attend as much as you can. Right जी, let's start now. 45 is a good number to start. अच्छा, अब उजैर साहब आए हैं, तो वेरा वीना, ये आपका मई जून 22, उस वक्त 2 घंटे 15 मिनट होते थे। सेक्शन बी सिर्फ होता था, सी नहीं होता था। एक दो क्वेश्चन करने होते थे 6 में से, गुड टाइम्स। लेकिन अब भी मुझे लगता है क्वेश्चन पहले से आसान है, तो इट्स डूएबल। तो बड़े सुकून से जी जल्दी से डाटा पढ़ते हैं। The world price of oil is primarily determined by OPEC. Okay, back, Manan Shami. Right, so world price of oil is primarily determined by OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, which is a cartel consisting of 15 major oil producing countries. These countries are, sorry, मुझे पता है किया हुआ है, लेकिन अब तरतीब में आ रहा है तो कर देते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ रिपीटेटिवनेस ऑफ सेक्शन बी, ताकि आपका बार बार उन्हीं टॉपिक को कर करके ना A2 होता ही रेपिटेशन के थ्रू है। तो जो बच्चे ये क्लासेस मिस करते हैं, ये वीडियोस नहीं देखते, अपना बहुत नुकसान करते हैं। These countries have over 75% of world reserves of oil. Saudi Arabia is effectively the leader of the cartel. It exercises leadership by adjusting the output of cartel to maintain the price agreed by cartel members. आपने कई बार अखबारों में शायद देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने कट किया है ऑयल की सप्लाई, अब दोबारा करने वाले हैं, ऑयल प्राइस बढ़ाने वाले हैं। कई बार बढ़ाते हैं सप्लाई ताकि अमेरिका को नुकसान दें, प्राइसेस कम कर दें, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़रा कम है उनसे। सो ये चक्कर। रशिया एंड यूएस आर नॉट मेंबर्स ऑफ ओपेक। ये डायरेक्ट मेंबर्स नहीं है यूएस एंड रशिया, बट दे इंगेज इन कोल्यूजन विद द कार्टेल बाय एक्सेप्टिंग द ऑयल प्राइस। एग्रीमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल कोल्यूजन जरूर करते हैं सऊदीया और बाकी ओपेक मेंबर्स के साथ। Between 10 and 19, US oil production increased from 6 million barrels per day to 12 million barrels per day, equal to output of Russia and exceeding that of Saudi Arabia. अमेरिका ने वो जो फ्रैकिंग का अपना किया है, वो जो ऑयल निकालने का प्रोसेस, उससे उनकी आउटपुट बहुत बड़ी है। The increase in US production was mainly through a process known as fracking, with low fixed costs and high variable costs. This contrasts with Russia and Saudi Arabia, where oil production involves high fixed costs and low variable costs. Third paragraph, in spring 2020, faced with a falling world oil price, Saudi Arabia proposed to cut its oil production. सऊदी ने कहा जी कि ऑयल प्राइस गिर रही है 2020 के स्प्रिंग में, तो why don't we cut supply ताकि प्राइसेस बढ़े। रशिया did not agree with the proposal and increased its output by 4%. एक थोड़ी सी इनकी लड़ाई हुई है। सऊदी अरेबिया responded by increasing its output by 20%. उन्होंने 20% सप्लाई बढ़ा दी। Result of this disagreement was that the world price of oil fell significantly from $70 per barrel to under $30 per barrel. ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में भी ऑयल 114 रुपए का मिलना शुरू हो गया था पर लीटर, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच रही थी, स्टिल 114 रुपए पे आ गया था। Situation was not helped by a sharp drop in the global demand for oil, as many countries shut down large sections of their economies in response to COVID-19 pandemic. एक साइड पे सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरी, दूसरी साइड से डिमांड गिरी, प्राइस गिरी ऑयल की। The joint action of Russia and Saudi Arabia was thought to be an attempt to undermine the US oil industry. एक किस्म की कोशिश की गई थी कि यूएस ऑयल इंडस्ट्री को bankrupt कर दें। This was because oil exports were a major source of income for both countries. Oil was responsible for more than 60% of Russia's exports. ठीक है जी, 60% of Russia's oil exports, um, and provided more than 30% of country's GDP, major export इनकी. For Saudi Arabia, the importance was even greater. The oil sector accounted for about 70% of export earnings and 50% of GDP. The high price of oil in the past year had enabled Russia to accumulate a significant budget surplus. क्योंकि रशिया की मेन एक्सपोर्ट थी, उनका बजट सरप्लस हो गया उसकी वजह से। Recent fall in the price of oil was thought to double the budget deficit of Saudi Arabia to $100 billion,
at a time when the government was seeking to develop the country's industry and reduce unemployment. इस पे वापस आएंगे. पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय अ कार्टेल. बचाओ बताओ बच्चों, 2 मार्क्स मुझे चाहिए. कार्टेल क्या होती है? परफेक्ट, बिल्कुल जिन बच्चों ने बोला है काफी अच्छा है. मिल मिला के 2 मार्क्स हो गए. जैसे आप बोलेंगे फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स, 1 मार्क. ठीक है. टू फिक्स प्राइसेस एंड आउटपुट या रेज प्राइसेस एंड आउटपुट, दूसरा मार्क. एहतियातन, टू बेनिफिट themselves फ्रॉम यूजिंग मार्केट कंडीशंस. ठीक है. और बिकमिंग मोनोपलीज. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन कार्टेल की डेफिनेशन में? A formal agreement between firms, or in this case countries, to fix price and output, normally raise price and reduce output, to become more like a monopoly or to build barriers to entry. कोई confusion cartel की definition में? Great. Next G, B part. Russia and US are not members of OPEC, but they engage in collusion with the cartel. अब मैं बच्चे किसी का नाम लेके पूछूंगा. एक्सप्लेन व्हाट द टर्म कोल्यूजन मींस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ओलिगोपोली. अदन कोशिश कीजिएगा. कोल्यूजन 3 मार्क्स के लिए हमने बताना है कि कोल्यूजन का क्या मतलब है. एग्जाम्पल दीजिएगा, कोई समझाएं जरा कोल्यूजन क्या होती है. टेक योर टाइम. अगर इतना टाइम नहीं है मेरा बेटा, ऑब्वियसली यू डोंट नो द टॉपिक देन. श्योर श्योर, कोशिश करें. हाँ, लेकिन काफी देर से आपको वर्ड फर्म नहीं मिल रहा. एक एक करती है वो. हम्म, शाबाश. अब सही आ रहे हो ना? ठीक है. तो सबसे पहले इसमें बोलना है कोल्यूजन इज अ इनफॉर्मल form of agreement between a group of firms who again work together for their benefits. One of these examples is price leadership, where one firm, the largest firm, usually with economies of scale, sets the price and the rest follow the leader. Even if raw materials वगैरह सस्ते हो जाएं तब भी वो प्राइस कम नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्लूसिव बिहेवियर में हैं. क्या दोनों में फर्क है? वही चीज है. कार्टेल जरा स्ट्रॉन्ग किस्म का आपस में वो कर रहे हैं बॉन्ड, फॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं, आउटपुट फिक्स कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा के क्वांटिटी कम करके मोनोपोली बन के बैरियर्स बना के अपने हक में कर रहे हैं मार्केट को. और जो कोल्यूजन है करना वही चाह रही है, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल बॉन्ड है. जैसे रशिया वगैरह के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ये लोग मिल के प्राइस लीडरशिप करते हैं, इसको टैसिट बोलते हैं, यानी इनफॉर्मल. टैसिट कोल्यूजन है ये. मसलन एक फर्म ने प्राइस लीडर का रोल लिया, बाकी सारों ने उसके मुताबिक प्राइस सेट की. इवन अगर रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, तब सस्ते हो गए, तब भी वो प्राइस कम नहीं करेंगे. ये पूरी बात. ओरल एग्रीमेंट इनफॉर्मल, मैंने उसका बोला, आपने ओरल बोल दिया. परफेक्टली ओके. समझ आ गया मेरे बच्चों? वेरी गुड. अब सी पार्ट हमने ऑल्दो किया हुआ है कुछ क्लासेस में ये, लेकिन लेट्स सी हाउ वेल यू इंटरप्रेट इट. द ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेसेस used by Saudi Arabia and the US have different proportions of fixed costs and variable costs. Analyze why the fall in price of oil may have a more significant effect on the output of oil in the US. तसल्ली में क्वेश्चन पढ़ें और मुझे बताएं ये कौन से टॉपिक को ज्यादा टारगेट कर रहा है. सिर्फ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की हद तक. उसके बाद वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस है इसका.
ये चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये रूल्स ऑफ, यस हादिर बिल्कुल सही हादिर, ये रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर पे क्वेश्चन है मेनली। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले की टर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करें, एक एक एग्जांपल दे दें। सबको आता है? मैं एक बार बोल देता हूँ फॉर द रिकॉर्डिंग। Fixed costs are those that do not change with the level of output, at least in the short run. For example, rent of premises, insurance of premises, interest on loans, etc. Variable costs are those that change directly with the level of output. ठीक है, and they are direct labor, direct materials. ठीक हो गया, 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए। अब उसने ऊपर क्या बताया है कि जो अमेरिका का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड कम है। सऊदीया में फिक्स ज्यादा है, वेरिएबल कम है। तो अब इनका फर्म्स का सर्वाइवल की वो बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में वो कह रहे हैं जी, इफेक्ट ऑफ फॉल इन आउटपुट, इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ ऑयल, sorry, analyze why the fall in price of oil may have a more significant effect on output of oil in US. US, ना, इट्स द रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर आमना। कब तक फर्म्स कंटिन्यू करती हैं शॉर्ट रन में, आउटपुट का डिसीजन इस पे आ रहा है। नहीं समझ आ रहा आपको क्वेश्चन शायद। लेट्स सी, कैन समबडी टेल मी द गुड आंसर कि ऑयल की प्राइस जब गिरती है तो यूएस की फर्म्स पे ज्यादा इफेक्ट क्यों होगा? हाँ शाबाश, उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से, हाँ ये चीज परफेक्ट ये। हाँ अब इसको पहले हल किया है, रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर बता दो, अपने आप के लिए भी आसान करो। Rules of firm's behavior suggest that in short run, if a firm is making losses, its revenue या price is below average cost, it should still continue as long as it's above or equal to average variable cost. So in case of US wells, the US oil wells, their variable costs are higher, so fall in price will make many wells unable to cover their variable costs. Some of them may shut down, so a greater fall in output will occur in US. Whereas in Saudi, even with the fall in price, their variable costs are low, so the revenue may still keep covering variable cost and they're able to produce in short run. So to conclude, American firms' oil output will be affected greater. Many wells will close, whereas Saudi wells will keep operating. However, we do not have enough data to be 100% sure, but on the basis of knowledge provided, US oil wells will be affected badly. समझ आया बच्चों? या एक बार फिर कर दूं, आमना स्पेशली आपको समझ आया? जी गुड गुड जी, क्या कह रहे हैं मुनीब? ओके, यूएस की आउटपुट पे बेटे, अगर रेवेन्यू बोलता तो यस, विदाउट अ डाउट वुड हैव गॉन टू पीईटी। लेकिन यहाँ पे उसने खुद बताया है कि जी उनकी जो है कॉन्ट्रास्ट विद रशिया, सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स हाई फिक्स कॉस्ट एंड लो वेरिएबल कॉस्ट, जबकि उनकी लो फिक्स कॉस्ट एंड हाई वेरिएबल कॉस्ट है यूएस की। तो रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर पे जा रहे हैं साफ साफ। आप समझ आ गया? गुड जी। एनी क्वेश्चंस? एनी बच्चा जिसको ये समझ ना आ रहा हो कि मैंने क्या बात की अभी? यस। नहीं नहीं नहीं, बना दो तो बना दो, जरूरत नहीं है, मांगा नहीं हुआ। एल गो आउट ऑफ, 7 मार्क का क्वेश्चन है, विल गो आउट ऑफ यू नो, बहुत टाइम जाया कर बैठोगे। लेकिन अगर फुल ग्रेप पैक कर देना बेटे, कोई हर्ज नहीं है। हाँ कंट्रीब्यूशन वाला यूएस सऊदी के लिए बना देना, और जिसमें एडेड लॉसेस वाला यूएस के लिए बना देना, एक ही ग्राफ में सब दिखा देना। बना के दिखा दूं एक बार जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कौन सा है? श्योर, here we go जी। let's quickly bring down our screen and ये जी मेरा बेटा, आपने एक ही ग्राफ यूज करना है और बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करना है ताकि आपका टाइम जो है वो खराब ना हो। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट,
आउटपुट मार्केट स्ट्रक्चर्स का ग्राफ है, परफेक्ट मार्केट का बनाओ, डिमांड कर्व ए आर एम आर, ठीक है। वैसे इम्परफेक्ट का लगना चाहिए बिकॉज ये रियलिटी में इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं, तो मैं इम्परफेक्ट का कर देता हूँ, ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो डिमांड लगाएं जी, ए आर एम आर, ठीक है। अब लॉस दिखाना है तो एवरेज कॉस्ट को ऊपर लगा दें, ठीक है। फॉर Saudia, I will put their average variable cost just below, ठीक है, ताकि वो कुछ कंट्रीब्यूशन ले सकें। अब जी MC लगाएं, MCMR की आउटपुट लें, ये सऊदीया का मैं बना रहा हूँ। क्वांटिटी जब आप गए पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट आया, इसको मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, फिर डिमांड कर्व तक गए, ये आपकी प्राइस आई, तो इतना सारा कंट्रीब्यूशन सऊदी अरबिया के फर्म्स को आ रहा था, दे शुड कंटिन्यू। और अमेरिका का मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC US लिख देता हूँ, और इधर सऊदी लिख देता हूँ जी बेटे। हाँ, अगर लॉन्ग रन भी कवर ना हो सऊदी अरब को कर देने, और अल्टीमेटली होगा ऐसे। समझ आ रही है बात? लॉस एडेड लिखना है, सॉरी, लॉस एडेड। तो अगर इकट्ठे में प्रैक्टिस है इकट्ठा बना दें, वरना इरास आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ में जाके ना कंफ्यूज ना करें आप अपने स्कोर को भी और एग्जामिनर को भी, ठीक है। सिंपल 7 मार्क का क्वेश्चन है, सो डू नॉट नीड टू गो टू फार बियॉन्ड। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी, या थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, जल्दी से अब देखते हैं। डिस्कस विद द यूज ऑफ ADAS डायग्राम्स, अब ग्राफ बनाने पड़ेंगे। हाउ रशिया एंड Saudi are likely to be able to respond to fall in oil prices। पहले तो हम बताएं यहाँ पे कि इनके हालात क्या हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। ऑयल मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर रशिया, और उससे भी ज्यादा सऊदीया के लिए। तो जब ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इनकी डिमांड, जैसे आमना ने बोला, इनइलास्टिक होती है, तो इनके रेवेन्यू पे और X-M पे और एग्रीगेट डिमांड पे, दोनों कंट्रीज पे क्या इफेक्ट आएगा? डेफिसिट होगा X-M, उसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे प्राइस लेवल गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। समझ आ गया? पहली चीज तो हमने ADS डायग्राम्स बना के 3 मार्क्स इसके मिलेंगे कि जी बिकॉज oil price fallen and oil has inelastic demand, both Saudi and Russia will experience a fall in aggregate demand, more so for Saudi because it depends more on oil। यस, 3 मार्क्स। अब रिस्पॉन्स जरा थोड़ा सा देखें, यहां पे रशिया की पोजीशन देखें। रशिया के पास काफी सारा बजट सरप्लस इकट्ठा हुआ है पिछले सालों की हाई प्राइस ऑफ ऑयल की वजह से। तो रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे वापस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करेगा? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगा सकता है, उसके पास फालतू बजट पड़ा हुआ है सरप्लस में, वो इंजेक्शंस लगाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, टैक्सेस कम करेगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के वापस अपने ग्रोथ को ट्रैक पे लाएगा। सऊदी अरेबिया का बजट डेफिसिट है और उनके पास पैसा नहीं है, व्हाट कैन दे डू? मसलन मसलन क्या करें? अच्छा, आप ये इस तरह जा रहे हो, ये भी गलत ऑप्शन नहीं है। आई वुड, हाँ, मुझे लगता है कि इनको ऑयल की सप्लाई कम करनी चाहिए, जिससे उनकी प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ेगी, इनइलास्टिक डिमांड है, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और इनका जो है एग्रीगेट डिमांड का वापस बाहर शिफ्ट हो जाएगा। सऊदी अरेबिया का मुजफ्फर डेफिसिट बजट है, दे डोंट हैव द मनी टू इंजेक्ट, सो व्हाट दे कैन डू इज ऑयल की सप्लाई कम कर दें, उससे वर्ल्ड वाइड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। ऑयल प्राइस बढ़ने से इनइलास्टिक डिमांड है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा आएगा, एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आने से वो बाहर चला जाएगा। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ, जी जी जी, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले इजी करना चाह रहा हूँ चमन। आपने सोचना था कि दोनों कंट्रीज की एग्रीगेट डिमांड गिरी है,
वो क्या कर सकते हैं? रशिया का तो साफ साफ बजट सरप्लस था, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाएंगे। सऊदी के पास वो ऑप्शन नहीं थी, तो इन बच्चों ने सही सोचा कि भाई एक्सपेंशनरी इंटरेस्ट रेट कम करवा के करा दो। मैंने सोचा ऑयल को जो है, जो उनका मेन हथियार है, उसकी सप्लाई कम करो, प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन इलास्टिक डिमांड की वजह से ज्यादा आएगा। तो खुद ही सोचा, डिफरेंट अप्रोचेस ली। अब समझ आया आपको? या सो रिमेंबर क्वेश्चन है क्या? साफ साफ पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन है ये। समझ आ गया? मैक्रो मिक्स कर दिया उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर्स की फौरन बाद। या सो व्हाट, उनको तो रेवेन्यू बढ़ाना है ना एक्सपोर्ट्स का। उन्हें तो अपने एक्स माइनस एम में इंजेक्शन देके एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है ना। बेटा साफ साफ साबित हो रहा है, देखो ऑयल की प्राइस फॉल हुई है। रशिया और अमेरिका दोनों ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, ऑयल की डिमांड इन इलास्टिक है, और प्राइस फॉल होगी तो ऑयल से एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा। दोनों इकोनॉमीज के एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। अब उसको वापस कैसे लाना है, वो पॉलिसी डिस्कस करनी थी। नहीं समझ आ रहा? देखो आपकी मेजर एक्सपोर्ट अगर ऑयल है, जैसे नेसेसिटी है, उसकी प्राइस गिरती तो आपको हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक होगी। करेक्ट? यू guys want to see the mark scheme or shall we move on to the longer questions? बताइए जल्दी से। अ, दोबारा क्वेश्चन पूछें, बहुत आपने जरा ऊंची, जरा क्लियर आवाज में बोले। वो हमें उस बात से हमें आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से नहीं। देखो उसने साफ साफ लिखा हुआ है, in contrast, Russia and Saudi Arabia, where oil production involves high fixed cost and low variable cost. फर्क ये है, अगर आप वैसे जानना चाहो, फ्रैकिंग समंदर में से निकलती है ऑयल, और उसमें सिर्फ वो जो डिगिंग की कॉस्ट होती है, जो फिक्स्ड कम है, वेरिएबल बहुत है, पाइपलाइंस एंड ऑल दैट। रशिया वगैरह रिफाइनरीज के थ्रू ऑयल बनाते हैं, उनकी फिक्स कॉस्ट लग चुकी है, वेरिएबल बहुत कम है। असल वजह ये, लेकिन उसने अपने से बताया कि उनकी वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो हमें तो मेन चीज ये समझनी थी ना कि फिक्स ज्यादा है, वेरिएबल कम है, तो सर्वाइवल किसका ज्यादा होगा प्राइस गिरने के केस में। साथ क्लियर हो गया? ओके जी, एनी क्वेश्चंस? नो वन वांट्स टू सी द मार्क स्कीम? जल्दी चला जाओ, मैंने मार्क स्कीम आपको भेजी हुई है, टैली कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी बड़े स्क्रोल्स पे, और पहला क्वेश्चन, वी हैव टाइम, मेरे ख्याल में इसी पे आज ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और इसको ज़रा अच्छी तरह कर लेते हैं। A rational consumer will always purchase less of an item as price increases. ये उसने एक assertion दी है। Discuss with the use of indifference curve analysis whether this statement is correct. नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत तसल्ली से जरा 1 मिनट सोचें, मैं फिर आपके पास आके पूछता हूँ इसको। सॉरी बेटे, मैं जरा कंप्यूटर से दूर था, दोबारा पूछिए। जी जी जी, बिल्कुल ऑर्डिनल अप्रोच का क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। मैंने हमेशा क्या बोला है, प्राइस इन चेंज में हमेशा, वैसे भी उसने बोल दिया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो ऑर्डिनल अप्रोच ही ऑफ कोर्स। यस बिल्कुल ठीक है। और तीनों गुड्स के बनाएंगे, ठीक है। मोटी मोटी अगर आंसर लेना चाहते हो, तो भाई इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स की प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरेगी, नॉर्मल की ज़्यादा, इंफीरियर की कम, और गिफन की डिमांड बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशनशिप, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ। ये टोटल क्वेश्चन का क्रक्स है। क्या सब बच्चे इस लाइन पे जा रहे थे या कुछ को क्लियर नहीं था? जी जी। कैसे लेते?
आपके पास ना इंफीरियर का ना गिफिन का कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर कार्डिनल अप्रोच में। तो आप कैसे बता सकते हैं कि किस गुड्स की डिमांड गिरेगी, किसकी बढ़ेगी? या तो ये साफ साफ, वैसे भी प्राइस चेंज वाले ना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑर्डिनल के थ्रू करो, साफ साफ स्कोर आता है। ठीक है, अब मुझे बताएं जल्दी से। मैं एक बार आप लोगों के साथ जुबानी जुबानी करवा के और फिर ग्राफ बना के इसको निबेड़े, बताएं मुझे। ये क्वेश्चन नहीं करने चाह रहे आप? रैशनल बार बार आने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो हम बिहेवियर पढ़ते हैं ना, एक परफेक्ट रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर है। हम में से कोई जाके दुकान पे बजट लाइन नहीं बनाता, पता होता है कितने पैसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कि भाई हमारे और जरूरतें कितनी हैं। क्या हम वहां पे इंडिफरेंस कर्व बना रहे होते हैं? माइंड में थोड़ा सा चल रहा होता है, हम इरेशनल हैं। रैशनल कंज्यूमर को शुरू में ही अच्छी तरह बता दीजिएगा, एक पैराग्राफ उसके नाम अजम्पशन है, और एंड पे यही बोलना है कि भाई ये अजम्पशन ही है। बट ये नहीं करना चाह रहे आप लोग, आई यू ऑल टोटल? जी जी जी। ये मुझे थोड़ी फिक्र है सर अहमद ने, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं ये चैप्टर इतना अच्छा करवाया। अब देखो बाकी बच्चे कह रहे हैं स्किप कर दो। बेटे प्राइस चेंज और इन गुड्स के ऊपर बहुत काम करते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर में। आमना आप लोग ना मेरी वीडियोस प्लीज देख लो, मैंने इस दफ़ा वीडियोस लगा दी हैं फेसबुक, सॉरी इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही दो वीडियोस हैं या तीन कंज्यूमर बिहेवियर की। क्योंकि आपको ये जो भी बच्चा ओपीएफ का आता है, लास्ट टाइम फातिमा भी कह रही थी सर व्हाई आर वी डूइंग दिस, ये तो इनकम रिलेटेड है। नहीं, ये प्राइस रिलेटेड भी है, समझ रहे हो? जिसमें हम सब, आपको याद होगा मेरी डेमो क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिफ्ट गुड्स, ये वो टॉपिक है। आपको समझ आ रहा है? मैंने काफी सारे सॉल्यूशंस भी भेजे हुए हैं आप। क्या बोल रहे हैं जेठी भाई, सॉरी? वो तो इनकम चेंज की बात करें, हाँ, पैरेलल शिफ्ट करके इनकम कंजम्पशन कर्व के थ्रू। इसमें हमने नॉर्मल वो करना है, पिवटल इनवर्ड शिफ्ट करके। मैं ग्राफ बना के दिखा दूं बच्चों एक बार, या सबको क्लियर हो गया है? बहुत दफा बनाए हुए, लेकिन आई एम जस्ट बिट वरीड। दूसरे सवाल पे जाएं। आमना, हाउ अबाउट दिस कि आप वीडियोस देखें, और स्टिल अगर देयर इज अ प्रॉब्लम जस्ट सेंड मी अ मैसेज और उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन। ठीक है, गुड, लेट्स मूव ऑन जी। लेकिन यार वैसे इंडिफरेंस कर्व को छोड़ना नहीं चाहिए, चलिए नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जी। जी जी बेटे जी। पैरेलल में शैडो बजट लाइन नहीं बनती, पिवटल में बनती है, प्राइस चेंज वाले में, क्योंकि दो इफेक्ट्स दिखाने हैं ना। पैरेलल में तो कोई और इफेक्ट दिखाना ही नहीं ना, आपने स्ट्रेट अवे इनकम कंजम्पशन कर्व के थ्रू इनकम चेंज से जो इफेक्ट आया है एक ही दिखाना है। इसमें प्राइस चेंज में सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट दो हैं, इनको अलग अलग करना पड़ता है, इसलिए शैडो बजट लाइन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए करनी पड़ती है। ओके जी। तो जी जी बेटे जी। क्या बोल रही हैं, सॉरी रास? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होगा, इनकम इफेक्ट नॉर्मल में नेगेटिव होगा, इंफीरियर में पॉजिटिव लेकिन सब्स्टिट्यूशन से छोटा होगा। गिफिन में इनकम इफेक्ट इतना पॉजिटिव होगा कि सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ डिमांड को बढ़ा देगा। ये कॉन्सेप्ट है टोटल। एवरीबडी क्लियर? शैल आई मूव ऑन, या एक बार करवा दूं ये क्वेश्चन? नहीं, तीनों गुड्स वाला आई डोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद यू गाइस। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैं अलग अलग बनाता हूँ ताकि आप लोगों को, क्या इकट्ठा बनाइएगा भी ना बेटे, बहुत गलत हो जाता है। डर जाएंगे, अलग अलग बनाएंगी। सबसे पहले चले इसी बहाने, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ, पहले मैं नॉर्मल गुड का करवा रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताएं कुछ डेफिनेशंस। व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व, जल्दी से। Same total utility, hence he is indifferent between all those points. So indifference curve is a curve that shows all possible combinations of two goods a consumer can buy in his, a consumer can get same total utility from, hence he is indifferent on all those points. इसकी स्लोप है mu of y over mu of x। बजट लाइन भी डिफाइन करते हैं बच्चों।
अब कोई और करे उम्मे और इराज के अलावा। हम्म। गिवन प्राइसेस, वेरी गुड। प्राइस लेवल नहीं, दो गुड्स की बात। तो आपने बोलना है बजट लाइन इज अ लाइन दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइसेस। इट्स स्लोप इज प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स। अलग अलग एक बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दिखा दीजिएगा, अच्छा स्कोर मिलता है। फिर इक्विलिब्रियम कीजिएगा, रैशनल कंज्यूमर पे चार पांच लाइनें लिखिएगा। ही हैज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ओवर लेस, wants to maximize his utility, always wants to make the best decisions in his limited resources, compares goods, allocate करता है resources, utility calculate कर सकता है, ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व की दो प्रॉपर्टीज, बेसिक इक्विलिब्रियम डिमांड इनका, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का। नॉन फिर प्राइस इफेक्ट पे आते हैं। जब भी प्राइस बढ़ती है प्राइस इफेक्ट आता है, या गिरे तब भी प्राइस इफेक्ट को बच्चा डिफाइन करेगा। आई नो बहुत बार करवा चुका हूँ लेकिन स्टिल। चेंज इन कंजम्पशन, yeah, change in consumption due to change in price as a result, sorry, change in consumption due to change in price of a product, ceteris paribus. Substitution effect क्या है? Relatively cheaper good, हाँ बिल्कुल सही है। Substitution effect is that when price changes, consumer always prefers the relatively cheaper good over relatively expensive one. Income effect सही definition चाहिए, बच्चे गलत बता देते हैं। Real income. Yes, it is change in consumption due to change in real income as a result of price change. ये प्राइस चेंज में ही दोनों इफेक्ट शामिल है और मिला के प्राइस इफेक्ट बनता है। नॉर्मल गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर प्राइस राइज, लेट्स से गुड एक्स नॉर्मल है, प्राइस राइज हुई है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव। रियल इनकम बढ़ी थी, हम उसको कम, रियल इनकम कम हुई थी, हम कम खरीदेंगे, और प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव। ठीक है। अब मैं जल्दी से बना रहा हूं एक बार फिर, ताकि जो बच्चे इस पे ग्रिप नहीं है थोड़ी ठीक कर लें। गुड वाई गुड एक्स पूरा लिखिएगा। अब जी बजट लाइन पहली लगाएं ए बी के नाम से। अब पहले तो हम इसमें इंडिफरेंस क्यों लगाते थे ना, अब हमने नई टेक्निक यूज की है। इसको पिवटल इनवर्ट शिफ्ट कर दें ए सी पे। अब रियल इनकम गई है गिर, वो कम खरीद पा रहा है एक्स, तो वापस लाएं इमेजिनरी लाइन के मुताबिक, दो पॉइंट्स लगा के बराबर शिफ्ट करना है। पैरेलल वापस, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, शैलो शैडो बजट लाइन हमने लेनी थी, थोड़ी यहाँ से मेरे से टेढ़ी हो गई। दोबारा बनाता हूँ मैं, साथ में असल में हाथ में ड्रिंक पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये सही नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ते हैं जी। अब देखते हैं, पैरेलल आपने शिफ्ट बनाना है, तकरीबन ठीक ही हो गया। डी एफ नाम दें। अब आपके लिए बड़ा आसान है, इंडिफरेंस कर्व लगाएंगे, खुद ही सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा और खुद ही इनकम इफेक्ट बन जाएगा। ये आ गया जी आपका इंडिफरेंस कर्व जीरो। हार्ड बजट लाइन जो ओरिजिनल है उससे जो हो रहा है वो ओरिजिनल कंजम्पशन थी, जो शैडो बजट लाइन साथ हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो सब गुड्स का ये सेम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव। अब क्योंकि नॉर्मल है इधर लगा दोगे, इंफीरियर है बीच में लगा दोगे, और गिफन है तो इसको आगे तक आना चाहिए था, यहाँ लगा दोगे। समझ आ गया मेरा बेटा? ये टोटल केस है इसके अंदर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ओके। आप अलग अलग बनाइएगा, नीचे डिमांड कर्व निकालिएगा ताकि आंसर बिल्कुल सही हो। अच्छा जी, अब मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, वैसे क्वेश्चन थ्री फोर ये सब करने चाहिए, एफिशिएंसी का है, एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या करवा देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, और लेबर मार्केट का बहुत साफ साफ क्वेश्चन है। मैं आपको सिक्स एंड सेवन ये ऑलरेडी मेरे सॉल्व्ड आंसर्स के पैकेज में मौजूद हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड यानी हाई इनकम एंड डेवलपिंग यानी लो इनकम कंट्रीज, और दूसरा डिस्कस वेदर जीडीपी इज द बेस्ट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये जल्दी से आपको वहां से दिखा दूं? जी बेटे। हम्म। तो लेट्स गो। जी। पूरी- पूरा मैक्रो के जो मैंने कोई 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे हुए हैं अपना राफे। क्या कह रहे हो? हाँ।
वही बात है, उसमें क्वालिटी ऐड करनी पड़ती है ना बेटे आंसर्स में। मसलन क्या क्या कौन से क्वेश्चन में? हाँ, कुछ चीज़ें कम भी हो सकती हैं। देखो, क्वेश्चन के मार्क्स के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर पॉइंट ज़रूरी नहीं होता लिखना। तो आई विल हैव टू लुक एट ईच क्वेश्चन कि क्या उसमें ज़्यादा या कम है, बट दे ऑल आर सर्विंग द पर्पस। तो आप जिनमें से भी इसको तैयारी करोगे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक जाओगे। ठीक है। अब ये डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था, साफ साफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लूं। पहले में वो पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डेवलपमेंट पे आ गया। और दूसरे में वो पूछ रहा है जीडीपी, अच्छा मेजर है ये, ग्रोथ पे आ गया। तो ये यूनिट नंबर 9 पे पहले मैं जाता हूँ। और सबको पता है ना, ये मैंने भेजा हुआ है, प्लीज इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी फॉर मैक्रो A2 क्वेश्चंस। ये देखें। ये तो और क्वेश्चन है। ये डिस्कस हाउ इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड हाई इनकम कंट्रीज एंड डेवलपिंग लो इनकम कंट्रीज। अब देखो, वही क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने बस बोल दिया, बात वही है, ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। समझ आ गया क्वेश्चन? ये वाला इसका आंसर है। सबको समझ आ गई बात? मैं थोड़ा दिखा दूं कि कहाँ रिकॉर्डेड है आपके नोट्स में, पेज 41 पे। और ये कौन सा यूनिट है? ऑफ कोर्स आपका डेवलपमेंट का। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बना बनाया हमारे सामने है, जल्दी से देख लेते हैं एंड इंशाल्लाह ताला दैट्स इट जी। राइट, ये करना है जो हम कर रहे हैं, थ्योरी बतानी है पूरी। नहीं होते, नहीं होते, बहुत दिल करे कुजनेट का बना दो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, दैट्स इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आंसर। इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड, हाई इनकम कंट्रीज एंड डेवलपिंग लो इनकम कंट्रीज बेस्ड ऑन a range of economic and social indicators. These classifications are used to understand the level of economic development and to provide a framework for policy development and aid distribution. बस मैंने थोड़ी सी क्वालिटी ऐड की है कि क्यों हम करते हैं ऐसे। पहला मोस्ट कॉमन, GDP per capita. One of the most widely used indicators to classify countries is GDP per capita. Countries with a high GDP per capita are classified as developed countries, while those with low GDP per capita are classified as developing या low income, आपने अब लिखना है नई क्लासिफिकेशन के मुताबिक। The World Bank currently classifies countries with a GDP per capita of 12,536 or more as high income countries and those with less than 1,046 as low income countries. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पहला इंडिकेटर हमने यूज किया जीडीपी पर कैपिटा, ये फिगर्स याद कर लो। 12,500 ही खाली लिख दोगे तो ठीक रहेगा, 1,050 लिख दोगे उससे कम है तो लो इनकम कंट्रीज, दैट्स इट। सेकेंडली वी कैन यूज HDI, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, is another widely used indicator to classify countries. HDI takes into account not only economic indicators such as GDP per capita, but also factors as life expectancy, education, and standard of living. Countries with high HDI scores are classified as developed, while those with low scores are classified as developing. रायन ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे वन थर्ड वगैरह वाली बात मैंने नहीं की सारा कुछ, लेकिन बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ HDI नहीं था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए नहीं किया। रायन समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। Countries with a high level of industrialization and advanced technology are generally considered to be developed countries. These countries typically have well developed manufacturing sectors and have moved beyond primary industries such as agriculture and mining. Political stability is also an important factor in classification of countries. Countries with stable governments and institutions are generally considered to be more developed, yeah, high income, and those with unstable political systems are low income countries. In infrastructure and access to services, developed countries typically have well developed infrastructure, including roads, telecommunication, transportation systems. They also generally have better access to basic services such as healthcare, education, and sanitation. Income distribution, इसमें आप ग्राफ बना सकते हो। Income distribution is another important factor in classification of income countries. Developed countries generally have a more equitable distribution of income than developed countries. कुछ नेट कर्व यहाँ बना दें कि जब लेस डेवलप्ड होता है, कम इनकम गैप्स होते हैं, सारे ही प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जीनी कोएफिशिएंट लो होता है,
फिर डेवलप होते हैं तो कुछ सेकेंडरी में वर्कर्स चले जाते हैं, कुछ प्राइमरी में रह जाते हैं, इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं। फिर जब डेवलप होता है तो इनकम गैप्स कम हो जाते हैं। एंड पे जी एक इवैल्यूएटिव नोट, it is important to note that these classifications are not fixed and may change over time as a country's economy and development level changes. Additionally, there is ongoing debate about the usefulness and accuracy of these classifications, as they can be subjective and may not capture the full complexity of a country's economic and social situation. तो मैंने यहाँ पे कितने किए हैं मैं आपको गिन के बता रहा हूँ। जीडीपी, एचडीआई, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर 5 और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 6। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, अब देखते हैं जी दूसरा क्वेश्चन। डिस्कस वेदर जीडीपी इज अ बेस्ट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। मैंने इसका 20 मार्क का आंसर आपके इन्हीं नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। लेट्स गो बैक टू दैट। सॉरी, यस, लेकिन मेन क्वेश्चन है कि जीडीपी अच्छा मेजर है नहीं, तो ज्यादा फोकस हमने जीडीपी पे रखना है और फिर बाकियों पे आ जाना है। बिल्कुल सही है। तो लेट्स क्विकली सी नाउ, यहाँ पे कहीं इसका यूनिट 7 में क्वेश्चन आना, ये आ गया जी। राइट जी, तो सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव हैव सिमिलर आंसर्स। मैंने 5 क्वेश्चंस या 4 लगाए हुए हैं यहाँ पे। रिपीट क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द एक्सटेंट टू व्हिच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, डिस्कस व्हाई अल्टरनेटिव्स टू जीडीपी आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड्स। सिमिलर आंसर है सबके। अब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वो शायद ये है। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू मेजर चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स बोथ बिटवीन कंट्रीज and within the country. Although some have been more useful than the others, none of these alternative measures have produced sufficiently accurate indicator of change in living standards. How far would you agree with the statement? Same answer है। So अब जल्दी से देखते हैं जी। Countries use many measures of living standards. Um, इधर क्या या और इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू कंपेयर देयर ओन परफॉर्मेंस। अब थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री। इट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट than economic growth and includes not just monetary but also many non-monetary factors such as education, healthcare, environmental conditions, leisure time, law and order, freedom of speech, etc. इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा टाइम लगाएं। मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन इज जीडीपी, which is the money value of all output produced, then the geographical boundaries of a country। अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, डिस्कस था ना कि अच्छा है कि नहीं, थोड़ा सा जीडीपी के हक में बात कर रहे हैं। जीडीपी rise indicates economic growth, hence rise in income, which means people can buy more goods and services, afford better education and healthcare, improving their quality of life. Secondly, GDP can be converted into real GDP, which accounts for effects of inflation in the country. It can be converted into real GDP per capita by dividing real GDP with population to enable comparison of average incomes per head. बस इतना ही इसका फायदा करके। However, GDP has many limitations as a measure of development as discussed below. सबसे पहले कई चीजें जीडीपी मिस कर जाता है। क्या क्या जी? हिडन, इनफॉर्मल, शैडो या ग्रे इकोनॉमी। ये इलीगल, नॉन टैक्स डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। स्मगलिंग, नॉन टैक्स कस्टम पेड कार्स, ब्लैक मार्केट्स, इलीगल ट्रेड, ड्रग ट्रेड वगैरह। जिन कंट्रीज में हैवी हिडन इकोनॉमीज हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर होते हैं कंपेयर टू व्हाट जीडीपी पर हेड शोज। तो यहाँ पे एक अंडरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को जीडीपी। लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लोगों के घरों में मेड्स हैं, उनके पास चोरी की गाड़ियां हैं, उनके पास स्मगल्ड आइटम्स हैं, बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी लो है। वो अंडरस्टैंड कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को। बात समझ आ रही है कैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स का और जीडीपी का? ओके जी, बी पार्ट में डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज। आपने अपना घर खुद पेंट कर दिया, अपनी गाड़ी ठीक कर दी खुद, वो जीडीपी में नहीं आएगा बिकॉज आपने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसकी सर्विस नहीं पे की, तो वो सर्विस अनरिकॉर्डेड चली जाएगी। फार्मिंग, कई जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं खुद ही फूड ग्रो करके कंज्यूम कर देते हैं, वो ना मंडियों में बिकते हैं ना ही जीडीपी में कोई नजर आता है कि इतनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह पैदा हुए थे। लास्टली, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे औरतें पाकिस्तान वगैरह में अपनी फैमिली की फार्मिंग में बहुत हेल्प करती हैं, बिजाई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, लेकिन वो नजर नहीं आता क्योंकि इनका कोई ऑफिशियल पे रोल वगैरह नहीं होता। तो पहला पॉइंट ही 4 हिस्सों पे मुश्तमिल था
कि 4 जगह जहां जीडीपी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर हैं और जीडीपी लेवल्स नीचे हैं। कौन कौन से? हिडन इकोनॉमी, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज, सबसिस्टेंस फार्मिंग, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे जी? इज एवरीबॉडी इन द क्लास? मैं जरा देखूं क्लास मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, हैं सारे बच्चे चले गए हैं काफी सारे वैसे। ओके लेट्स मूव ऑन जी। उसके बाद क्या है जी? जीडीपी बढ़ा, रियल जीडीपी पर हेड बढ़ा, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं थी। कुछ जो बहुत अमीर थे उनके पास बहुत सारा पैसा और गरीबों के पास कम पैसा। तो ये सही पिक्चर नहीं दे रहा क्वालिटी ऑफ लाइफ की कंट्री के। ओनली अ फ्यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग वेरी इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड जिनके पास पैसा आ गया है, बाकी वैसे ही होंगे या उनके हालात और खराब होंगे। फिर इसी तरह इसमें आते हैं थर्ड जी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ रहा है बड़ी तेजी से क्योंकि हम मिलिट्री गुड्स बना रहे हैं, टैंक्स, F-16s, गन्स, वो बड़ी महंगी होती हैं। तो बज़ाहिर जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रही, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं हो रहे। सेमली हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को पीपीसी में कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स की तरफ कर दिया। वक्ती तौर पर क्योंकि ज्यादा कैपिटल गुड्स बन रही हैं, कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स ड्रॉप होंगे। अब जीडीपी दो जगहों पे मिसस्टेट कर रहा है। शॉर्ट रन में जब हम कैपिटल गुड्स ज्यादा बना रहे हैं, जीडीपी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बड़ी महंगी होती हैं फैक्ट्रियां, ये सब चीजें, रोड्स, तो एकदम से जीडीपी बहुत बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड कंज्यूमर गुड्स कम बनने की वजह से लो होंगे। लेकिन फ्यूचर में जब ये कैपिटल गुड्स बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स बनाएंगी, जीडीपी स्लो बढ़ रहा होगा लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड तेजी से बढ़ रहे होंगे। तो दोनों जगहों पे इसने मिसस्टेट किया लिविंग स्टैंडर्ड्स को। समझ आ गया बच्चों या थोड़ा सा और? क्वालिटी ऑफ गुड, जीडीपी राइज कर रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। गाड़ियां जो बना रहे हो वो अच्छी माइलेज नहीं दे रही, अच्छी ड्राइव नहीं दे रही, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। जी सॉरी, कुछ पूछ रहे थे को बच्चा? ओके बताएं बताएं। मैं उस पे आता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा नंबर 5 जी, जीडीपी सेम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट पीपल आर एंजॉयिंग मोर लेजर टाइम। जैसे यूरोप में 40 की जगह वो 36 आवर्स पर वीक काम करते हैं, तो जो 4 घंटे उनके पास लेजर टाइम है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, लेकिन जीडीपी तो नहीं शो करेगा ना। 4 घंटे उन्हें काम कम किया था, जीडीपी स्लो बढ़ेगा, उतनी आउटपुट नहीं होगी, तो जीडीपी कहेगा लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, हालांकि वो 4 घंटे लेजर टाइम ले रहे थे। अब पॉइंट जो नेक्स्ट है नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है नोट इफ ओनली जीडीपी वाज इन द क्वेश्चन, डू नॉट यूज इफ रियल जीडीपी पर हेड वाज यूज्ड इन द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल लेते हैं ना हम। सो जीडीपी राइज में रिफ्लेक्ट ग्रोथ, बट इफ इट वाज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, living standards may not improve, therefore we should convert GDP into real GDP। हो क्या रहा है, चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत शदीद महंगी हो रही हैं। अगर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं निकालेंगे, लगेगा पाकिस्तान में बहुत ग्रोथ आ रही है, इतनी महंगी हो गई चीज़ें, आउटपुट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ महंगाई थी। तो उसको निकालो तब जाके पता लगेगा कि रियल जीडीपी बनाओ, क्या वाकई ग्रोथ आ रही थी या सिर्फ महंगाई ने ये गलत स्टेटमेंट दी थी। परचेजिंग पावर पैरिटीज, ये सिंपली क्या है रायान कि बेटे, हाउ मच अ डॉलर कैन बाय इन डिफरेंट कंट्रीज, या हाउ मच फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। हमारे कंट्रीज में नॉन ट्रेडेबल गुड्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती, हेयर कट, ब्यूटिशियंस की सर्विसेज, ये जो होम ट्यूशंस वगैरह, मेड सर्विसेज वगैरह, ये बहुत सस्ती हैं, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो रही, ठीक है, और हमारे मुल्कों में बड़ी सस्ती मिल रही हैं, तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं बेहतर हैं कंपैरेटिवली। जितना जीडीपी हमें लो शो कर रहा हो तो उतने बुरे हालात नहीं होते। समझ आ गई बात? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। ओके एनीवन एल्स? जी बेटी 20 मार्क का क्वेश्चन है, अभी एचडीआई वाला भी करना है, ठीक है। अब जी देयरफॉर, जी जी बोलें बोलें। लो दिखा रहा होता है ना, जीडीपी लो दिखा रहा है, जीडीपी पर हेड है थोड़ा, लेकिन हमें ये गांव से सब्जियां आ गई, हमें जी सस्ते हेयर कट मिल गए, ब्यूटिशियन सर्विसेज सस्ती मिल गई, तो ये जब चीज़ें देखेंगे, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है हमारे पैसे की, वही जीडीपी ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहा होता है, लेकिन जीडीपी पर हेड में वो नज़र नहीं आ रहा होता। वेलकम बेटे। नेक्स्ट, देयरफॉर कंट्रीज यूज अदर मेजर्स
as well such as HDI, New Mu, MPI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वन थर्ड वेटेज देते हैं, जीएनपी को, परचेजिंग पावर पैरिटी वाले को वन थर्ड, लिटरेसी को, एवरेज years of schooling for a 25 year old in a country and his school attendance, वन थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, यानी हाउ मेनी years a newborn baby can expect to live, तो बेसिकली मनी, हेल्थ, एजुकेशन, तीन इंडिकेटर्स दिए हैं उसने। अगर कंट्री वन स्कोर कर रहा है, कंट्री फुली डेवलप्ड है, अगर जीरो स्कोर है तो जंगल है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। सो बेनिफिट ऑफ यूजिंग एचडीआई क्या है जीडीपी के ऊपर? ज्यादा कॉम्पोजिट है, एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ को दिखा रहा है, हेल्थ, एजुकेशन सबको देख रहा है, सिर्फ पैसे को नहीं देख रहा, लेकिन इसके फिगर्स आसानी से अवेलेबल नहीं है और मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है। न्यू म्यू कुल करके आज की क्लास खत्म करते हैं, क्लास लेट हो रही है। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, ये क्या था जी? इकोनॉमिस्ट था न्यूजीलैंड का, उसने कहा कि जीडीपी बुरा मेजर नहीं है, उसी को ठीक कर दो। जहां जीडीपी अंडरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, उन चीजों को ऐड कर दो, मसलन हिडन इकोनॉमी वगैरह को, लेजर टाइम को, और जहां जीडीपी ओवरस्टेट कर रहा है उसको माइनस कर दो, एक्सटर्नल कॉस्ट को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को माइनस कर दो। So it's an attempt to improve most common measure of living standards, that is GDP, but it's difficult to find figures for comparison. वहीं evaluation कर रहे हैं, involves a lot of guesswork to estimate hidden economy and external costs, hence becomes an inaccurate and normative measure, opinion based है। MPI या हम कल कर लेंगे या आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसकी बस एंड पे एक इवैल्यूएशन सुन लो। कंसिडरिंग द अबव, लास्ट पैराग्राफ है, कंसिडरिंग द अबव डिस्कशन, no one measure is satisfactorily describing living standards, hence a combination of quantitative measures such as GDP, real GNP per capita, and a host of qualitative measures like HDI, new mu, MPI, GPI भी एक होता है, general progress indicator, etc. may be needed to indicate a better picture of economic development and living standards। ये बहुत कॉमन है, चांस है इस बार भी शायद आ जाए। बच्चों क्लियर हो गया सबको? ओके जी। एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द क्लास? श्योर बेटे, मैं इसको रिकॉर्डिंग अपनी कर दूं।